Welcome to all in course Fundamentals of Behavioral and Social Science Research. This is module 7, Criteria and Sources of Identifying Research Problem. And today I am going to deal meaning and significance of a research problem. After the reading and hearing this lecture, you can develop the potency, define and explain the concept of a research problem, identify key characteristics of a good research problem, recognize different research problems in behavioral and social science research, develop a clear and researchable problem statement, apply steps to formulate a research problem in the area of interest. If we understand the concept of problem, it means we are going to talk about a research problem. A research problem is a specific issues, difficulty, contradiction or gap in existing knowledge that necessitate investigation. It serves as the starting point of a study and define the scope and objective of research. According to Kerlinger, a research problem is an interrogative sentences or statement that ask what relationship exists between two or more variables. Kerlinger generally talk about the in relation to variables, and they talk that what relationship exists between two or more variables. Creswell defines a research problem, a statement about an area of concern, a condition to be improved, a difficulty to be eliminated, or a troubling question that exists in scholarly literature. So, generally understanding about the research problem, we can see the term problem, and problem gives us scope, probably research oriented background, logically emerge metaphysical questions. प्रॉब्लम वर्ड को अगर हम थोड़ा सा एम्फसाइज करके समझे तो P probably R research oriented, B background, probably research oriented background, L logically, E emerged, M metaphysical questions. तो इसको अगर हम एक साथ कंबाइंड करते हैं तो हमें प्रॉब्लम की एक मीनिंग अच्छी मिलती है, जिससे हमें लगता है कि प्रोबेबली रिसर्च ओरिएंटेड बैकग्राउंड. जब भी हम रिसर्च के प्रॉब्लम के साथ जाएं, इट मींस दैट हैव अ रिसर्च ओरिएंटेड बैकग्राउंड, एंड उसमें जो भी क्वेश्चंस को हम डील करने जा रहे हैं दैट बी बेस्ड ऑन द लॉजिकली इमर्ज्ड, और वो क्वेश्चन भी लॉजिकली इमर्ज होना चाहिए. क्योंकि मेटाफिजिकल क्वेश्चन वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि जो प्रश्न हम सॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा है वो उसकी बात कर रहे हैं. तो देयरफॉर प्रॉब्लम कैन बी कंसीडर लाइक दैट. एंड नेचर ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम की जब बात करेंगे तो अ रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाइज अ नॉलेज गैप दैट नीड इन्वेस्टिगेशन. यहां जब हम रिसर्च प्रॉब्लम की बात करेंगे, इट मींस दैट बेस्ड ऑन द knowledge gap. It means it identifies a knowledge gap that needs investigation. जहां पे काम नहीं किया गया है, जहां पे knowledge is not in existence. Metaphysical question जो मैं बात कर रहा था वो यही बताता है कि वहां पे something is missing, और वो गैप को ही फुलफिल करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं. That is considered as the knowledge gap. It must be clear and precise to ensure a focused study. जब रिसर्च प्रॉब्लम की बात होगी तो वो क्लियर कट डायरेक्शन देने वाला हो और प्रिसाइज हो. तो इट मस्ट बी क्लियर एंड प्रिसाइज टू इंश्योर अ फोकस स्टडी. इट मस्ट बी रिसर्चेबल मीनिंग दैट इट कैन बी एग्जामिन्ड थ्रू सिस्टमेटिक इंक्वायरी. इट मस्ट बी रिसर्चेबल, उस पर रिसर्च किया जा सके. ऐसा नहीं हो कि जहां हमने कहा है लॉजिकली इमर्ज मेटाफिजिकल क्वेश्चन, लॉजिकली इमर्ज, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा लें हम अपने दिमाग में और वो दिमाग से. तो इसलिए जनरली हम लोग जब रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने जाते हैं तो हम कहते हैं गो विद द हेल्प ऑफ रिव्यू. आप रिव्यू करें कैसे पीछे रिसर्च टाइटल बनाए गए हैं, उसमें कैसे रिसर्च क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं. तो उन सब चीजों को जब आप रिव्यू के थ्रू एक अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी बन जाएगी, देन यू कैन बी एबल टू सेलेक्ट द रिसर्च प्रॉब्लम. तो इसलिए कहा जा रहा है कि जब रिसर्च प्रॉब्लम की प्रकृति की बात हो रही है तो इट मस्ट बी रिसर्चेबल, वो रिसर्च करने योग्य हो.
It means that it can be examined through systematic inquiry, and it is often formulated as a question or a statement that guide the research. It is often formulated as a question or a statement that guide the research. उसमें जो questions involve हो या statement involve हो, वो इस तरीके का हो कि वो research को रास्ता दिखा सके, अनुसंधान को एक pathway दे सके. तो नेक्स्ट वन, इट सर्व एज द बेसिस फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस. तो जो रिसर्च प्रॉब्लम के ही बिहाफ हम अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और हाइपोथेसिस फार्मुलेट करते हैं, तो वो प्रॉब्लम ही हमारा बेसिस हो, वो आधार दे जिससे कि हम ऑब्जेक्टिव फार्मुलेट कर सकें और वेल मैनर्ड में ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस फ्रेम हो सके. तो इट मीन्स कि रिसर्च प्रॉब्लम इस तरीके से होना चाहिए कि वो नॉलेज गैप को फुलफिल कर रहा हो, क्लियर एंड प्रिसाइज हो, दैट टॉपिक दैट प्रॉब्लम बी रिसर्चेबल, उसके एसोसिएटेड क्वेश्चंस एकदम क्लियर कट हों और उससे ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस सेटिंग किया जा सके. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम. अ वेल फॉर्मुलेटेड रिसर्च प्रॉब्लम शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट वन, क्लैरिटी एंड स्पेसिफिसिटी. जो भी फॉर्मुलेटेड रिसर्च प्रॉब्लम है या कह सकते हैं कि जो हमने डिजाइन किया है एक रिसर्च प्रॉब्लम, उसमें पहला जो होना चाहिए कि दैट देयर बी क्लैरिटी एंड स्पेसिफिसिटी. द प्रॉब्लम मस्ट बी वेल डिफाइंड एंड अनएम्बिगुअस. दूसरा जो हम लोगों ने पीछे भी डील किया कि रिसर्चेबिलिटी, उस पे रिसर्च किया जा सके. द प्रॉब्लम शुड बी इन्वेस्टिगेबल थ्रू एम्पिरिकल और थ्योरेटिकल मीन्स. जो हमारे पास नेचर है वर्क का, उसके जो टूल्स हैं वो अप्लाई हो सकें और हम क्या यहाँ पे जो प्रॉब्लम हमने ली है वो उस पर रिसर्च किया जा सके, चाहे थ्योरेटिकली या एम्पिरिकली. सिग्निफिकेंस उसकी होनी चाहिए. जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हमारा इस तरीके का हो कि द प्रॉब्लम शुड बी कॉन्ट्रीब्यूटरी. ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कहीं से उठा लिया और उसको प्रॉब्लम के रूप में कंसीडर कर लिया. तो द प्रॉब्लम शुड कंट्रीब्यूट टू एकेडमिक नॉलेज या बॉडी ऑफ नॉलेज, पॉलिसी मेकिंग और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. तो एकेडमिक नॉलेज आल्सो एज द बॉडी ऑफ नॉलेज, जो हम कह सकते हैं बॉडी ऑफ नॉलेज इज मोर अप्रोप्रिएट एट हियर, दैट शुड बी कंट्रीब्यूटरी देयर. वहां पे कुछ इनरिच करे, नॉलेज, कोई नया नॉलेज निकाल कर लाए, या जो प्रॉब्लम है कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में हेल्पफुल हो या नई पॉलिसीज डेवलप करने में हमारे लिए हेल्पफुल हो, दैट विल बी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. इथिकल फिजिबिलिटी. द प्रॉब्लम शुड एडहेयर टू इथिकल रिसर्च प्रिंसिपल्स. यस, जो भी इथिकल रिसर्च प्रिंसिपल्स हैं वो वहां पे आसानी से यूज में हो, अदरवाइज वो रिसर्च फिर कह सकते हैं कि कंसिडर नहीं करी जाएगी वो अपने एथिकल कंसिडरेशन की वजह से. नॉवेलिटी. द प्रॉब्लम शुड एक्सप्लोर न्यू पर्सपेक्टिव और एड्रेस अनरिजॉल्व इश्यूज. जो भी प्रॉब्लम्स हम लेने जा रहे हैं वो नॉवेल हो और वो ज्ञान के क्षेत्र में अपना नया योगदान करने जा रही हो. एंड मैनेजेबिलिटी. द प्रॉब्लम शुड बी फिजिबल विद इन द अवेलेबल टाइम, रिसोर्सेज एंड स्किल्स. जो समय सीमा है उसके अंदर काम किया जा सके और जो अवेलेबल रिसर्चेज है और जो अवेलेबल स्किल्स इन द रिसर्चर है उसी के बिहाफ वो हो. फिर सिग्निफिकेंस ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम. और रिसर्च प्रॉब्लम इज सिग्निफिकेंट फॉर मल्टीपल रीजंस. थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस एंड मेथोडोलॉजिकल सिग्निफिकेंस. थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस में हम अगर इसको कंसिडर करते हैं, हेल्प्स इन एक्सपेंडिंग existing knowledge in a particular field. Theoretical significance leads to development of new theories, models or framework, enhances academic discussion and intellectual debates. Practical significance provides solution to real world problems, informs policy making and social change, helps organization and industries improve their practices. Methodological significance determine the choices of research design, method and data analysis techniques, guide the formulation of research objectives, hypotheses and questions, ensure systematic and logical progression of the study. So these are the some significance of a research problem. चूंकि ये theoretical expand existing knowledge in a particular fields,
develop new theories, models or framework, and enhances academic discussion and intellectual debates. Like that, practical significance, go for the real world problem solutions, policy making and social change, helps organization and industries improve their practices, and नई methodology के साथ वो आता है. Steps in identifying a research problem. Identifying a research problems involve the following steps: literature review, observation of practical issues, discussion with experts, identifying personal interest, examining social needs. तो इनके साथ हम रिसर्च प्रॉब्लम को आगे बढ़कर सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में सबसे जो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है वो लिटरेचर रिव्यू है, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू ऑलवेज आपको हेल्प करता है कि क्या किस तरीके की रिसर्चेज गोइंग ऑन है, और रिपीटेशन से आप भी बचाता है कि हम रिपीट ना कर दें किसी काम को. तो रिव्यूइंग प्रीवियस स्टडीज टू आइडेंटिफाई गैप, और नॉलेज गैप जब भी हम आइडेंटिफाई करने जाते हैं तो लिटरेचर रिव्यू के साथ. ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रैक्टिकल इश्यूज, जो फील्ड में काम हो रहे हैं वहां से ऑब्जर्व करेंगे तो आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स इन रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट. डिस्कशन विथ एक्सपर्ट्स, जो उस फील्ड में, मान लीजिए टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ अगर हम डिस्कशन में जाते हैं सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेज में, तो एंगेजिंग विथ स्कॉलर्स जो वहां पे काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल एंड स्टेक होल्डर्स, उनके साथ हम डिस्कशन करके एक प्रॉब्लम को हम उस फील्ड में इवॉल्व कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं. आइडेंटिफाइंग पर्सनल इंटरेस्ट, सेलेक्टिंग ए टॉपिक दैट अलाइंस विद द रिसर्चर्स एक्सपर्टीज एंड क्यूरियोसिटी, एंड एग्जामिनिंग सोशल नीड्स, जो सोसाइटी की नीड्स है, एड्रेसिंग प्रेसिंग प्रेजेंटिंग सोसाइटल चैलेंजेस, उनको भी कंसिडर करके हम प्रॉब्लम को सेलेक्ट कर सकते हैं. अगर बात करें कि सम गुड रिसर्च प्रॉब्लम्स इन बिहेवियरल एंड सोशल साइंस रिसर्च, साइकोलॉजिकल इश्यूज पे देखें तो द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया एंड एडोलसेंट मेंटल हेल्थ, लाइक दैट रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, कॉग्निटिव बायसेस इन डिसीजन मेकिंग. एजुकेशनल चैलेंजेस पे हम बात कर सकते हैं, द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस, impact of open book examination on conceptual understanding, gender differences, STEM education participation, like that social issues, the effect of social norms on consumer behavior, the influence of cultural factors on leadership styles, the role of misinformation in shaping public opinion, health and well-being में हम बात कर सकते हैं, the effectiveness of mindfulness practices in reducing workplace stress, impact of peer pressure on adolescent substance usage, socioeconomic status and access to mental health services, like that organizational and workplace studies, work-life balance and job satisfaction among teachers, the role of intrinsic motivation in employee productivity, leadership styles and employee engagement in remote work setting. So like that, in which field we want to identify the problems, by the considering the steps, we can identify a good problem that will be applicable in the field of research, and that will be contributory. By the reading of these references, we can make our understanding about the research problem. Thank you to all.